آپ نے جان لی बुलेटिन के عید قربان کی آمد ہے. آپ کو بتایا کہ عید الاضحیٰ کی آمد میں صرف 1 مہینہ باقی ہے. مویشی منڈیاں کب لگے گی حتمی تاریخ نہ دی جا سکے. ذرائع کے مطابق منڈیاں آخری 10 دنوں میں لگائی جائیں گی اور ممکنہ طور پر اس بار 18 پوائنٹس قائم کیے جائیں گے. SOPs کی پابندی بھی لازم ہوگی. اس پہ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالرحمان. 1 ماہ بعد عید الاضحیٰ ہے مگر ابھی تک قربانی کے جانوروں کے سیل پوائنٹس اور تاریخ کے متعلق طے نہیں کیا جا سکا. کہا جا رہا ہے کہ مویشی منڈیاں ممکنہ طور پر 1 ذو الحج کو لگائی جائیں گی مگر اس سلسلے میں پنجاب بھر میں ابھی تاریخ کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا. اس بار شہروں کی بجائے منڈیاں شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر لگائی جائیں گی. اس بار گزشتہ برس سے ڈبل منڈیاں ہوں گی. پچھلے برس 9 سیل پوائنٹس تھے جبکہ اس بار 18 ہو سکتے ہیں. 15 سال سے کم اور 50 سال سے زائد عمر والے منڈی میں داخل نہیں ہوں گے. فیس ماسک پہننا بھی ضروری ہوگا. 18 مقامات پر مویشی منڈیاں لگیں گی. ان میں تحصیل لیول پر مویشی منڈیاں لگائی جائیں گی. سمندری، تاندیاں والا، جڑا والا، چک چھمرا، غلام محمد آباد، نیا موانا، ستیانہ روڈ اور شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر منڈیاں لگیں گی. اکا دکا بیوپاری منڈیوں میں جانور لے کر آنا شروع ہو گئے ہیں. بڑے جانور کی خریداری پر 500 جبکہ چھوٹے جانور کی خریداری پر 100 روپے سرکاری فیس دینا لازم ہوگی. کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41، فیصل آباد. اور اب آپ کو لاک ڈاؤن کی صورتحال سے آگاہ کریں. فیصل آباد کے 8 بازاروں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا گیا. گھنٹہ گھر کو وہیکل فری بنانے کے بعد کھولنے کا فیصلہ کیا گیا. بازاروں سے پارکنگ کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا. کاؤنٹر، فٹ پاتھ اور ریڑیاں بھی نہیں لگیں گی. یہ ہے فیصل آباد کا گھنٹہ گھر جس کے بازاروں میں لاک ڈاؤن مشروط طور پر ختم کر دیا گیا ہے. بازاروں سے پارکنگ کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے گاڑیاں ہٹائی جا رہی ہیں جس سے گھنٹہ گھر کو وہیکل فری کیا گیا ہے. رکشہ، لوڈر، موٹر سائیکل، کار، ریڑی کا داخلہ بند جبکہ 5 جگہوں پر پارکنگ ہوگی. تجاوزات پہ زیرو ٹالرنس ہے اور یہ تجاویز ہمیں جو ہماری تاجر برادری ہے ان کی طرف سے ہی آئی تھی کہ یہ پارکنگ فری ہوگا، انکروچمنٹ فری ہوگا. تو آج فرسٹ ڈے ہے. آلموسٹ یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ 90%، 95% حالات بہتر ہیں. جو اس میں 5% جو اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم شام تک اس کو کلیئر کر. اسی سٹی نے دورہ کے دوران اندرون بازار بھی چیک کیے. انہوں نے بتایا کہ تجاوزات کا خاتمہ کر رہے ہیں. کاؤنٹر، تھڑے اور ریڑیاں نہیں لگیں گی. کاروبار دکان کے اندر ہی محدود ہوگا. سٹی کے جو ہے وہ آؤٹر کارڈن جو ہے جو 8 بازار ہیں کلاک ٹاور کے ہم نے وہ سیل کر دی ہیں اور اس میں جو انٹری ہوگی وہ ان لوگوں کی ہوگی جو یہاں پہ جینون خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں اور ہم نے جو ہے اس میں پولیس اور سول ڈیفنس کو ڈپیوٹ کیا ہے. شہر کے 17 ہاٹ سپاٹ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن میں مزید 2 ہفتوں کی توسیع کر دی گئی ہے. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد. انسداد پولیو مہم کے حوالے سے ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. فیصل آباد میں 20 جولائی سے انسداد پولیو مہم کا آغاز ہوگا. پولیو ویکسین وائلز کے ریکارڈ بھی رکھا جائے گا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے. عزادار بتائیے گا. محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے WHO کے تعاون سے 20 جولائی سے فیصل آباد کے 44 یونین کونسل ایسے ہیں جہاں پہ انسداد پولیو مہم منائی جا رہی ہے اور ایسے میں ملازمین کی ٹریننگ کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. اس ٹریننگ دینے کا مقصد کیا ہے اور اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروسز ڈاکٹر بلال احمد نے مختلف ٹریننگ سیشن جو کہ کروائے جا رہے ہیں ان کا دورہ کیا اور وہاں پہ ملازمین کو ٹریننگ دی اور ٹریننگ کا جائزہ لیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سے جانتے ہیں سر کتنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے اور اس وقت کیا خاص بات ہے؟ جی حضرت، بیسیکلی یہ پولیو کمپین نہیں ہے، یہ ایک کیس رسپانس ہے. ہمارے 3 کیسز جو تھے وہ جڑا والا اور صدر کا جو ہمارا بارڈر لائن ایریا ہے مکوانا سائڈ پہ، وہاں پہ UC ہماری 34 ہے اور 143 ہیں UC. ان میں جو رپورٹ ہوئے تھے جو OPV2 سے متاثرہ تھے. بیسیکلی یہ ایک 0 کیس رسپانس ہے ان کے لیے جس میں صرف پورے پنجاب میں فیصل آباد کی یہ 44 یونین کونسلز جو ہیں ان کے اندر بچوں کو ہم OPV2 کی جو ویکسین ہے وہ پلائیں گے. اس میں خاص بات یہ ہے کہ نارملی ہم جو ویکسین یوز کرتے ہیں وہ پولیو 1 اور پولیو 3 سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. یہ پولیو 2 کی ویکسین ہے، یہ ہم چھوڑ چکے تھے. اب یہ جو کہ کیس آئے ہیں اس وجہ سے فیصل آباد اور اس کے علاوہ KPK، سندھ اور بلوچستان کے اندر یہ جو 0 کمپین ہے یہ اس کی چل رہی ہے. 20 جولائی سے یہاں پہ سٹارٹ ہوگی. چونکہ یہ ویکسین دوسری ویکسین سے ذرا ہٹ کے ہے اس لیے اس کو دینے کا اور اس کو بعد جو ٹیموں سے واپس لینی ہے جو استعمال شدہ وائلیں ہیں یا جو بچی ہوئی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. خواتین، مزدور اور بھٹوں پر کام کرنے والی عورتوں کا موقف تھا کہ چھوٹے قرضوں پر سود کا بڑھنا قابل مذمت ہے. ہم نے قرض کسی اور پر ریٹ لیا اور اب ہم پر سود کا ریٹ بڑھا دیا گیا جو کہ ہمارا معاشی قتل ہے.
خواتین نے بینر थामे जिला कौंसल चौक से DC ऑफिस तक एहतजाजी मुजाहरा किया और अपने मुतालबात इंतजामिया के सामने रखे। इस मौका पर पुलिस ने आकर मजदूर रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात करना चाहे तो LQM के सदर लतीफ अंसारी की पुलिस एहलकारों के साथ तलख कलामी हो गई। मजदूर वर्कर खवातीन का कहना था कि कर्जों पर बढ़ते सूद को रोका जाए ताकि मजदूर के लिए पैदा होने वाली मुआशी मुश्किलात कम हो। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शेराज भट्ट, फैसलाबाद। अब आपको ताजरों के मसाइल बारे अपडेट करें। माह मार्च, अप्रैल, मई की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में कमी ने सेक्टर को झंझोड़ के रख दिया। एक्सपोर्टर्स परेशान। सनतकारों ने हुकूमत से यौन, डाइज और केमिकल को सेल्स टैक्स फ्री करने का मुतालबा किया। शेराज भट्ट अपडेट करेंगे। फैसलाबाद में खास तौर पर एक्सपोर्ट डिक्लाइन होने के बाद सनतकारों के क्या व्यूज़ हैं और क्या तासुरात हैं। एक्सपोर्ट डिक्लाइन के हवाले से ख़ुसूस तौर पर बात की जाए तो ना सिर्फ एक्सपोर्ट कम हुई है बल्कि मनफी में चली गई है, जो कि एक्सपोर्टर्स के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है। इस नुकसान को पूरा करने के लिए क्या इंसेंटिव होने चाहिए गवर्नमेंट की जानिब से, कौन से रिलीफ मिलने चाहिए जिसकी बुनियादों पर ही एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो पाएगी। क्योंकि हमने विटनेस किए हैं पिछले 2 माह में जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। मई, अप्रैल और इसके साथ साथ मार्च का जो महीना है 2020 का, ये एक्सपोर्ट के लिए सबसे वर्स्ट मंथ जो है वो साबित हुए हैं। काशिफ ज़िया मेरे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन, उनसे बात करते हैं। काशिफ ज़िया कि एक्सपोर्ट को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, एक्सपोर्ट सेक्टर को खास तौर पर मजबूत करने के लिए कौन से ऐसे इंसेंटिव हैं जो गवर्नमेंट की जानिब से वॉर फुटिंग बेसिस के ऊपर चाहिए जिसकी बुनियादों पर अगले 2-3 महीने के अंदर हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ नुकसान जो है पूरा हो सके। और ये आपने पहली दफ़ा फिटनेस किया है कि आपकी एक्सपोर्ट माइनस में चली गई। देखें, अगर आप पिछली कोई भी हिस्ट्री उठाएंगे उसके अंदर कभी भी इतना ज़्यादा डिक्लाइन और इतनी ज़्यादा बहरान का शिकारी इंडस्ट्री नहीं रही है कि हमारी एक्सपोर्ट नो डाउट कोरोना सिचुएशन की वजह से पूरी दुनिया इस टाइम पे डिस्टर्ब हुई हुई है। सेल पॉइंट्स जो हैं वो बंद हैं, रिटेल्स जो हैं वो बंद हैं, लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो हमारी पाकिस्तान जो बैकबोन है टेक्सटाइल जो है उसके ऊपर इतनी बुरी तरह आए हैं कि -36% जो है ये सिर्फ मई में -36% गई है पूरी टेक्सटाइल, और जिसमें गारमेंट सेक्टर जो एक मेन किरदार अदा करता है वो -33% पे गया। और इतनी ज़्यादा डाउनफॉल के नो डाउट अभी पूरी दुनिया खुलना शुरू हुई है, हमें आगे ऑर्डर्स मिलना शुरू हैं, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करें कि अगले साल मार्च तक भी अगर हम दोबारा मार्च 2020 वाली सिचुएशन पे आ जाए तो हमें बहुत बड़े हम लकी साबित होंगे कि हमारी एक्सपोर्ट्स वहाँ पे दोबारा सस्टेन कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट से इस दफ़ा बजट के अंदर जो हमें इंसेंटिव दरकार थे, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि जो इतना अहम सेक्टर है पाकिस्तान का कि गवर्नमेंट उसको फुली सपोर्ट करेगी, और उसके लिए हमारी सबसे बड़ी डिमांड। आपका शुक्रिया। टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कोरोना वायरस के बाद गुज़श्ता सालों के ऑडिट केसेस निपटाने की डेडलाइन में तौसीह कर दी और RTO को दिसंबर 2020 तक का वक्त दे दिया गया। इसी मुतालिक हमें बताएंगे उमैर असमत। जी, टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम टैक्स दफातर को अहकामात जारी किए गए हैं कि गुज़श्ता सालों के जिन टैक्स ऑडिट केसेस की तहकीकात की जा रही थी उनको मुकम्मल करने की जो डेडलाइन है उसमें तौसीह कर दी गई है। बिलखुसूस माली साल 2014 के जो ऑडिट केसेस हैं उनमें सैकड़ों केसेस की तहकीकात की जा रही थी, जिस पर फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन और पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और चेयरपर्सन FBR से ये मुतालबा किया गया था कि कोरोना वायरस है, बाद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है और माशी सरगर्मियाँ भी बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में टैक्स दहिंदगान और टैक्स प्रैक्टिशनर्स को रिलीफ फराहम किया जाए और ये जो ऑडिट केसेस हैं उनकी तहकीकात फौरी तौर पर रुकवाई जाए, क्योंकि ना तो टैक्स गुजारों के लिए फौरी तौर पर FBR दफातर में इन केसेस की तहकीकात के लिए पेश होना आसान है, जबकि दूसरी जानिब मुआशी अबतर सूरत हाल के बाइस टैक्स गुजारों के लिए फौरी तौर पर जो गुज़श्ता सालों के टैक्स ऑडिट केसेस हैं उनमें जो रेवेन्यू मुलव्वस है वो फौरी तौर पर अदा करना जो है वो इनके बस में नहीं है। तो इस पर अभी FBR की जानिब से हिदायतनामा जारी किया गया है रीजनल टैक्स दफातर को कि जो डेडलाइन है केसेस को निपटाने के लिए, जो कि पहले 30 जून दी गई थी, अभी उसमें इजाफा कर दिया गया है और FBR हुक्काम
दिसंबर के इख्तिताम तक, यानी कि रवां साल के दिसंबर के इख्तिताम तक इन केसेस की तहकीकात को मुकम्मल करें और तमाम जो शेड्यूल है उसको असर नौ मुकम्मल किया जाए। बहुत शुक्रिया उमैर, आपने अपडेट किया। आप खबर शामिल करेंगे ज़राअत के मैदान से। झंग में गुलाबी सुंडी के खिलाफ महकमा ज़राअत की जानिब से इक़दामात का अमल जारी है और पोस्ट सीजन कपास की काश्त पर होने वाली गुलाबी सुंडी के हमले को मुकम्मल तौर पर तलब कर दिया गया। अवैस खान अपडेट करेंगे। जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से गुलाबी सुंडी के मुमकिन हमले के पेश नज़र जो है आगाही प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखा हुआ है। गुलाबी सुंडी पे जहाँ पे जुज़वी तौर पे हमला वहाँ पे फौरी तौर पे काबू पा लिया गया है। महकमा ज़राअत की टीमें जो हैं वो फील्ड के अंदर मौजूद हैं। इस हवाले से मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अख्तर हुसैन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, गुलाबी सुंडी को काबू पाने के लिए किस किस्म की आगाही दी जा रही है, उसे कब जो हमला हुआ है उस पर किस तरह काबू पाया गया है? यहाँ हमारे जंग में तकरीबन 29,000 एकड़ पे कॉटन काश्त है, जिसमें तकरीबन 10% हम ये कह सकते हैं कि जो अप्रैल सोइंग काश्त है, जिसको अगेती काश्त है। और अगेती काश्त के वक्त क्योंकि मौसम फेवरेबल होता है कि गुलाबी सुंडी का अटैक वहाँ पे हो जाए, तो हम इस सिलसिले में हमारी टीमें काफ़ी कॉन्शियस थी कि अगेती काश्त पे अगर गुलाबी सुंडी का अटैक होता है तो लोगों में आगाही पैदा की जाए। और बल्कि इस काश्त से पहले भी हमने लोगों को काफ़ी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे वो किए हुए थे और हमें ये इस चीज़ पे पूरा वसूख था कि इस दफ़ा गुलाबी सुंडी का हमला कम होगा। लेकिन बहरहाल जो अगेती काश्त थी उसमें देखा गया कि गुलाबी सुंडी जो है वो फ्लावर्स में मौजूद थी, तो हमने लोगों को फौरी तौर पर उसमें आगाह किया। हमारी बाकायदा इसमें कैंपेन चली और हमने लोगों के साथ मिलकर और इसकी जो हैंड पिकिंग के ज़रिए ऐसे फूल जिनको हम मदानी नुमा फूल कहते हैं उनको पिक करवाया और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत पॉजिटिव असर हुआ है। इस वक्त किसी जगह पर जंग में यानी गुलाबी सुंडी जो है वो नज़र नहीं आ रही और मौसम भी अब आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने मिडिल से हाई स्कूल तक अपग्रेड किए गए 1227 स्कूलों को तालिबी बोर्ड से लिहाज करवाने का टास्क जिले अफसरान को सौंप दिया। इस टास्क के हवाले से हमें अपडेट करेंगे जहांगीर अशरफ। पंजाब हुकूमत की तरफ से फैसलाबाद समेत सूबा भर के 1227 स्कूल्स को मिडिल से हाई में अपग्रेड किया गया था। अब पंजाब हुकूमत की तरफ से तमाम डीओ सेकेंडरी को हिदायत की गई है, टास्क दिया गया है, जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो तमाम अपग्रेड होने वाले स्कूल्स को तालीमी बोर्ड से अलहाक करवाएं। इस हवाले से फैसलाबाद के 58 स्कूल हैं जिनको मिडल से हाई क्लासेस में अपग्रेड किया गया है और इसके साथ ही डीओ सेकेंडरी को हिदायत की गई है कि चूँकि हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी होने के बायस इंतजामी दफातर खोलते हुए हफ्ते में 2 रोज़ स्कूल में नए दाखिले का जो हुक्मनामा जारी किया है, उसके मुताबिक तमाम वो स्कूल जो मिडल से हाई अपग्रेड हुए हैं वहाँ पर भी जमात महम के बच्चों को दाखिल करना जो है ये सिलसिला शुरू किया जाए ताकि तालीमी बोर्ड से अलहाक में उन तमाम बच्चों को रजिस्टर करवाया जा सके। इस हवाले से डीओ सेकेंडरी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो तमाम स्कूल जिनको मिडल से हाई अपग्रेड किया गया है वहाँ पर दाखिला मुहिम शुरू करे और इनकी तालीमी बोर्ड से अलहाक के लिए जो कागजी कार्रवाई है उसको मुकम्मल करके तालीमी बोर्ड कार्रवाई को भी मुकम्मल किया जाए। जहांगीर, आपका शुक्रिया। महकमा सेहत तोबा टेक सिंह का एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू शाहरुख खान नियाजी की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। ब्यूरो चीफ तोबा टेक सिंह राना अजहरुल इजलास का अहवाल बताएंगे। महकमा सेहत तोबा टेक सिंह का इजलास हुआ। ADCR तोबा टेक सिंह शाहरुख खान सदारत की। इस मौका पर CEO हेल्थ डॉक्टर मुमताज़ सियाल समेत दीगर मौजूद थे। टोबा टेक सिंह में कोरोना वायरस के साथ साथ डेंगू के हवाले से इकदाम का जायजा लिया गया। उनको बताया गया कि टोबा टेक सिंह ज़िला में कोरोना के जो मरीज़ हैं जो घरों में इलाज हैं उनके साथ साथ जो नया एक फैसला आया है उसमें यह बताया गया कि ज़िला भर में अब 15 ऐसे जो है मेडिकल स्टोर होंगे जो कि 24 घंटे खुलेंगे। इस सिलसिले में तमाम इलाकों में कमालिया कोयलापीर में तमाम इलाकों में जो है ऐसे जो हैं वो मेडिकल स्टोर नोटिफाई कर दिए गए हैं जो कि 24 घंटे खुल रहेंगे और इन तमाम मेडिकल स्टोर्स पर जो है 91 अद्वियात हैं जो कि दस्तियाब होंगी और उनकी कीमतें भी लिखी जाएंगी। तमाम जो अद्वियात हैं ये कोरोना के हवाले से हैं। इस पर कहा जाए कि तमाम जो अफसरान ने जो है मतलब इलाकों को चेक भी किया और हिदायत जारी कर दी गई हैं और नोटिफाई कर दिया गया। इसके साथ डेंगू के हवाले से कहा गया कि सर्विलेंस जारी है जिस पर ADCR ने कहा कि तमाम इदारे जो हैं वो अपनी इमलाक को चेक करें और तमाम इदारों की छतें देखी जाएंगे कि जितने भी तमाम इदारे चेक करें और कोशिश की जाए कि जितने किया। शुक्रिया आपका। बैक खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद में कस्टम
इंटेलिजेंस और थाना झंग बाजार पुलिस की कार्रवाई। ईरान से स्मगल शुदा सामान की भारी खेप को पकड़ लिया, सामान जब्त करके मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। फैसलाबाद कस्टम इंटेलिजेंस और थाना झंग बाजार पुलिस ने एक कार्रवाई की। ईरान से स्मगल शुदा सामान की भारी खेप को पकड़ा गया, सामान जब्त करके मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। थाना गुलबर्ग पुलिस की मुबैना गुंडागर्दी का वाकया। मुकामी स्नूकर क्लब में सफाई के लिए आए मुलाजमीन और मालिकान पर मुबैना तशद्दुद करके मोबाइल फोन नकदी छीन ली गई। तशद्दुद और माल मसरूका छीनने की सबूत को मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ गए। मुतासिरीन ने थाना गुलबर्ग पुलिस के खिलाफ आरपीओ फैसलाबाद को दरखास्त दी, लेकिन ताहाल सुनवाई न हो सकी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि थाना गुलबर्ग पुलिस की मुबैना गुंडागर्दी का वाकया। मुकामी स्नूकर क्लब में सफाई के लिए आए मुलाजमीन और मालिकान पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया, फिर मोबाइल फोन्स और नकदी भी छीन ली। तशद्दुद और माल मसरूका छीनने के सबूत को मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। मुतासिरीन ने थाना गुलबर्ग पुलिस के खिलाफ आरपीओ फैसलाबाद को दरखास्त दी, लेकिन ताहाल किसी किस्म की सुनवाई नहीं हो सकी। और अब आपको तकर्रुर तबादले के हवाले से अपडेट करें। सीपीओ सुहेल चौधरी ने 7 SHOs की तैनाती और तबादले के अहकाम जारी कर दिए। इंस्पेक्टर एहसान अशरफ SHO पीपल्स कॉलोनी तैनात, जबकि इंस्पेक्टर वहीद शाहिद SHO बटाला कॉलोनी, सब इंस्पेक्टर सुफियान बुट्टर SHO डिस्कोट, सब इंस्पेक्टर राय फारूक SHO निशाताबाद तैनात कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर असद अली SHO थाना कोतवाली, मोहसिन मुनीर बसरा को SHO मदीना टाउन तैनात किया गया। सीपीओ सुहेल चौधरी ने 7 SHOs के तैनाती और तबादले के अहकाम जारी किए। इंस्पेक्टर एहसान अशरफ SHO पीपल्स कॉलोनी तैनात किए गए। उधर झंग में बिजली चोरों के खिलाफ फेस्को की जानिब से कार्रवाइयां जारी हैं। गुज़श्ता माह के दौरान 82 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इन कार्रवाइयों के हवाले से अपडेट करेंगे मुबशर हसन नकवी। सीईओ फेस्को की हदायत पर झंग सर्कल की इंतजामिया की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। झंग सर्कल के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मजहर नवीद के मुताबिक जून के दौरान बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां की गई। सर्कल भर में 82 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, जो मुख्तलिफ अंदाज से बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। अक्सर अफराद ऐसे थे जो डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे, और अक्सर अफराद जो है वो टैंपरिंग के जरिए बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए, और उनके खिलाफ जिला भर के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज करवा दिए गए हैं, और इनको तकरीबन 1.5 लाख यूनिट डाले गए हैं, और इनसे 27 लाख रुपए जुर्माना जो है वो रिकवर किया गया है। एसई मजहर नवीद का ये कहना है कि जून के दौरान जितने भी सार्फिन थे इनको बेहतर सर्विसेज भी फराहम की गई, और ये वजह है कि जून के दौरान तकरीबन 5000 मीटर जो है वो सार्फिन के तब्दील किए गए हैं, जिनको शिकायत थी कि उनके मीटर जो है वो ख़राब हो चुके हैं या उनके जो है मीटर तब्दील नहीं हो पा रहे हैं, जिस पर 5000 मीटर जो है वो फेस्को झंग सर्कल की जानिब से तब्दील किए गए हैं। ऐसी आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। रेलवे हुकाम के रेलवे खसारे को कम करने के लिए ट्रेनों के प्राइवेटाइजेशन करने का फैसला। रेलवे हुकाम का अप एंड डाउन की 24 ट्रेनें प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का हतमी फैसला कर दिया गया। और चीफ मार्केटिंग मैनेजर रेलवे की जानिब से ट्रेनों की आउटसोर्सिंग के लिए टेंडर तैयार कर लिया गया। तफसीलात हमें बताएंगे सईद अहमद सईद। रेलवे हुकाम का रेलवे खसारे को कम करने के लिए ट्रेनों की जो प्राइवेटाइजेशन का फैसला है वो कर लिया गया है, और इस हवाले से 24 अप एंड डाउन की ट्रेनें हैं उनको पब्लिक पार्टनरशिप के तहत वो चलाया जाएगा। और इस हवाले से चीफ मार्केटिंग मैनेजर रेलवे मुबशर नवीद की तरफ से एक टेंडर जो है वो तैयार कर लिया गया है, और इसके अंदर 4 जो ट्रेनें हैं वो लाहौर से, जबकि 20 ट्रेनें जो हैं वो दीगर शहरों से चलाई है वो जाएंगी। और इसके ऊपर अगर बात करें आउटसोर्स की जाने वाली ट्रेनों में 6 मेल और जबकि 18 जो है वो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो शामिल हैं। और इन ट्रेनों के अंदर जो है वो सर सैयद एक्सप्रेस जो कि VVIP ट्रेन थी, कराची से रावलपिंडी के लिए चलाई गई थी, वो उस ट्रेन को भी प्राइवेट करने का फैसला है वो किया गया है। उसके साथ ही हज़ारा एक्सप्रेस, अटक पैसेंजर, महर पैसेंजर, गुजरावाला पैसेंजर, चनाब एक्सप्रेस, लाला मूसा, फैज़ अहमद फैज़ समेत जो गुजरावाला
एक्सप्रेस है उसको प्राइवेट करने का फैसला है वो किया गया है और इस हवाले से 21 जुलाई तक के लिए जो टेंडर हैं वो तलब किए गए हैं और ख्वाहिशमंद अफराद जो हैं वो 21 जुलाई तक लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर के अंदर जो अपनी ट्रेन के हवाले से जो कागजात और टेंडर हैं वो जमा करवा सकेंगे और टेक्निकल बिड है वो भी 21 जुलाई को लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर के अंदर ही ओपन है वो की जाएगी। और ज़राए का ये कहना है कि फैसला जो है वो रेलवे खसारे को कम करने के लिए किया गया और एक तरफ बातें की जा रही थी कि रेलवे को जो है वो प्राइवेट किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ रेलवे को प्राइवेट ना करने के हक में के खिलाफ जो है वो एहतजाज भी किया गया, जिसके ऊपर अब फैसला किया गया है ज़राए के मुताबिक कि ट्रेनों को मुतअद्दिद ट्रेनें जिनमें शामिल हैं उनको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत वो चलाया जाएगा ताकि एक तो खसारे को कम किया जा सके, दूसरा ताकि खसारे को कम किया जा सके। सईद आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अहम खबर शामिल करेंगे, मकान मालिक को किराएदार से किराया तलब करना महंगा पड़ गया। फैसलाबाद के इलाके चक 214 में खातून मालिक पर किराएदार ने पिस्टल निकाल लिया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में किराएदार को गली में असलहे के साथ देखा जा सकता है। दरखास्त मौसूल होने के बावजूद थाना सदर पुलिस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। आपको बता रहे हैं कि मकान मालिक को किराएदार से किराया तलब करना महंगा पड़ गया। फैसलाबाद के इलाके चक 214 में खातून मालिक पर किराएदार ने पिस्टल निकाल लिया और वाकई की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई, जिसमें आप वाज़ेह तौर पर मुलाहिजा भी कर सकते हैं। फुटेज में किराएदार को गली में असलहे के साथ देखा जा सकता है। दरखास्त मौसूल होने के बावजूद थाना सदर पुलिस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। जी बिल्कुल, अहम मामला है, मकान मालिक को किराएदार से किराया तलब करना महंगा पड़ गया। कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको अपडेट करें। डिवीजन भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 161 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। जिला भर में मुतासिर अफराद की तादाद 4939 हो गई, जबकि अब तक 159 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। टोबा टेक सिंह जिला भर में 497 कोरोना वायरस का शिकार हुए। ज़राए महकमे सेहत के मुताबिक अब तक 235 मरीज कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। डिवीजन भर में कोरोना वायरस के वार जारी है। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 161 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। जिला भर में मुतासिर अफराद की तादाद 4939, जबकि अब तक 159 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इससे मुतालिक मजीद आपको अपडेट करें। कोरोना वायरस के मरीजों से मुतालिक नए कावानीन मुतारिफ करवा दिए गए। कोरोना का शिकार शहरी इलामात खत्म होने पर 3 दिन के बाद करंटीना खत्म कर सकते हैं। आम शहरियों को एक रिपोर्ट नेगेटिव आने का इंतजार करना पड़ेगा। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ ने महकमे सेहत अफसरान को मरासला जारी कर दिया। आपको बता रहे हैं, अहम खबर है और इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे अज़ादार हुसैन। जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से कोरोना वायरस से मुतलिक नए SOP जो है वो जारी कर दिए गए हैं और जारी करदा मरासला जो कि महकमा सेहत के अफसरान को भेजा गया है। जारी करदा मरासले में यह कहा गया है कि जिन अफराद की रिपोर्ट कोरोना टेस्ट की पॉजिटिव मौसूल होगी, मुस्बत आएगी, मगर उनमें कोरोना वायरस की अलामात नहीं होंगी, तो 10 रोज़ के बाद उनका जो क्वारंटाइन है वो बेअसर हो जाएगा और वो ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि जिन अफराद में अलामात होंगी तो और उनका कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव भी आएगा और ऐसे में जिस दिन उनकी अलामात ख़त्म होंगी तो उसके मज़ीद 3 दिन के बाद गुजारने के बाद वो क्वारंटाइन अपना ख़त्म कर सकते हैं। साथ में ये कहा गया है कि आम शहरियों के लिए अगर कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट उनकी मुस्बत मौसूल होती है और बाद उनकी अगर एक बार रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए तो उनका क्वारंटाइन ख़त्म कर दिया जाएगा। साथ में मेडिकल में तैनात जो मेडिकल के शोबे से वाबस्ता जो अमला है, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ का अमला शामिल है, उनके लिए महकमा प्राइमरी सेकेंडरी की जानिब से 2 बार नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो शर्त करार दे दी गई है कि जब तक उनकी 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव मौसूल नहीं हो जाती, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ का अमला शामिल होगा, तब तक उनका जो है क्वारंटीन अज़ादार हुसैन आपका शुक्रिया। और अब खबर शामिल करेंगे कमालिया से। कमालिया में तहसील इंतजामिया की जानिब से कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के वेंटिलेटर्स को आगाही देने के लिए मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस पर मजीद बात करेंगे रिजवान खान से। इंतजामिया की जानब से टाइगर फोर्स के साथ आगाही सेशन के हवाले से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें खुसूसी तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशीन इसरार, टाइगर फोर्स के फोकल पर्सन राय अलियास समेत दीगर ने शिरकत की। बात भी करेंगे, हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर नौशीन इसरार साहिबा मौजूद है। उनका बताइएगा आज आपकी जानब से जो टाइगर फोर्स के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया, क्या कहेंगे?
بیسکلی یہاں پر جو میٹنگ تھی وہ ان کی ٹریننگ کے لیے تھی اور ٹریننگ اور کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے. تو ہم نے یہاں پر ہمارے جو ہیومن رائٹس کمیٹی کے ممبر ہیں ان سے ان کی ٹریننگ کروائی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے فوکل پرسن ٹائیگر فورس کو آپٹیڈ ممبرز جو ہمارے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری گڈ گورننس ہیں وہ بھی یہاں موجود تھے اور انہوں نے بھی بچوں کی اچھی سے ٹریننگ کی ہے. مقصد یہ ہے کہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ ایک والنٹیئر فورس تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ینگ لوگ بھی اور ینگ لوگوں کی ٹریننگ بڑی ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایڈمنسٹریشن اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی ممبرز ہیں ہم ان کی ٹریننگ کریں تاکہ وہ اپنی لائف میں آگے جا کر بھی اس کے علاوہ بھی اچھے طریقے سے اپنی لائف کو گزار سکیں اور اپنی جتنی بھی پروفیشنل جو بھی ایکٹیویٹیز ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں اور ان کی گرومنگ کے لیے بہت ضروری ہے. جی بالکل مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ ٹائیگر فورس کا انچارج میں. بھائی جان کیا کہیں گے آج آپ نے ٹائیگر فورس کے حوالے سے جیسے کمیشنر نوشین اسرار کی ہمراہ میٹنگ میں شرکت بھی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائیگر فورس پچھلے 1 مہینے سے کام کر رہی ہے تو آج میڈم نوشین نے خاص طور پر ٹریننگ کا اہتمام کیا تاکہ جو نوجوان لڑکے ہیں انہیں بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آگاہی دینے کے لیے کچھ اچھے طریقے سے ٹریننگ دی جا سکے. اس کے لیے سید کاظم علی شاہ نے ہمیں ٹائم دیا, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے لڑکوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ نے لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے, کیسے آگاہی دینی ہے, کیسے شعور دینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور خدمت کے جذبے سے جو لڑکے. اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.